I hope you all are fine. Today I am teaching you First Flight, chapter number 3, two stories about flying. In this chapter, two different stories about the flying is there. Today I am teaching you part 1, that is his first flight. It is written by Liam O. Flaherty. Before starting the explanation, first we talk about the new words which comes in this chapter. First one is seagull, means sea bird. Samudri, pakshi, bird. Next is ledge, means a narrow horizontal cliff. Nukila, tikona, kissa ya kinara. Next is brink, means extreme edge, corner, corner wala ya kinara. Next is attempted, means tried, prayatna kiya. Next one is flap, means fluttering wings, पंखों को फड़फड़ाना. Next is expanse, means expansion, spread out, फैलाना या बिखेरना. Next is beneath, means below, नीचे की ओर. Next is muster up, means gather, gather means इकट्ठा करना या जुटाना. Next is plunge, means to take the risk, risk लेना, जोखम उठाना. Next is frilly, means in a sharp and unpleasant voice, बहुत ही तीखी आवाज जो कि कानों को सुनने में अच्छी न लगे. Next new word is upbraiding, means scolding, डांटना फटकारना. Next is threatening, means intimidating, डराना. Next is skim, means to move lightly just above a surface, थोड़ा सा मूव करना सरफेस के जस्ट ऊपर. Next is herring, a kind of fish, एक प्रकार की मछली. Next is devour, means eat away, निगल जाना. Next is cackle, means making an unpleasant voice, ऐसी आवाज करना जो कि सुनने में अच्छी न लगे. Next is cliff, means steep rock, चट्टान. Next one is derisively, means mockingly, मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए. Next is plaintively, means sorrowfully, दुखी मन से, दुखी होकर. Next is uttered, means said, बोला गया. Next word is halted, means stopped, रुका हुआ. Next one is shrieking, means screaming, चिल्लाना. Next one is ridges, means mountain ranges, पहाड़ों की श्रृंखला. Next one is called, means made a cackling sound, it means काव काव की आवाज करना. Next is beckoning, means signaling, संकेत देना. Next is exhausted, means
tired badly, बहुत ज़्यादा थक जाना. Next one is belly, knees, abdomen, pate. Next one is floating, knees, to swim slowly in water, पानी में धीरे धीरे तैरना. Next one is scraps, means pieces. This is the last word. Scraps means pieces, टुकड़े. Young Seagull was alone on his ledge. Young Seagull अकेला बैठा था किनारे पर. His two brothers and his sister had already learned the art of flying only the day before. एक दिन पहले ही उसके 2 ब्रदर और एक सिस्टर ने उड़ना सीख लिया था. He did try. उसने भी ट्राई किया. He had taken a little run forward and tried to flap his wings. उसने थोड़ा दौड़कर अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की. But that was all he could do. But वो इतना ही कर पाया. He became afraid. वो उड़ने से डर रहा था. He felt that his wings wouldn't support him. उसे ऐसा लग रहा था कि उड़ने में उसके पंख सहायता नहीं कर रहे हैं. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. तो उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर उस होल की तरफ चला गया जहाँ पर वो रात को सोता था. His brothers and his sister had wings far shorter than his own wings. जबकि उसके ब्रदर और उसके सिस्टर की विंग्स, उसके पंख उनसे भी ज़्यादा छोटे थे. बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज एंड फ्लाई. पर वो साहस जुटाने में नाकामयाब रहा, इसलिए वो उड़ भी नहीं पा रहा था. हिज पेरेंट्स टॉन्टेड, स्कॉल्डेड एंड थ्रेटन्ड हिम. उसके पेरेंट्स ने उसे ताना मारा, उसे डांटा, उसे डराया. टू लिव हिम स्टार्विंग एट द लेज अनलेस ही फ्लू अवे. अगर वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए भी नहीं दिया जाएगा. बट नथिंग कुड मेक हिम फ्लाई. पर कोई भी बात का असर उस पर नहीं हुआ और वो इसलिए उड़ने में भी सक्षम नहीं रहा. The seagull helplessly watched his parents flying with his brothers and sisters. Seagull असहाय रूप से अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर और सिस्टर को उड़ता हुआ देख रहा था. They were perfecting them in the art of flying. उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को फ्लाइंग के आर्ट में परफेक्ट बना रहे थे, उन्हें निपुण कर रहे थे. They were teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वो उन्हें उड़ने के साथ साथ ये बातें भी सिखा रहे थे कि लहरों के ऊपर से कैसे उन्हें डाइव करके फिश को पकड़ना चाहिए. The whole family went on taunting him for his cowardice. उसका सारा परिवार, उसकी पूरी फैमिली उसे टॉन्ट कर रही थी कि वो कितना कायर है. जब उसे ये काम सीखना चाहिए उसे वो सीख नहीं रहा था, इसके लिए उसे ताने मारे जा रहे थे. Only young seagull mother was looking at him. Young seagull की मदर ही उसे देख रही थी. She had picked a piece of fish. उसके मुंह में मछली का टुकड़ा था. She was flying across to him with it. वो उसके आसपास उसे कैरी कर कर घूम रही थी. He leaned out eagerly. वो उसकी तरफ झुक रहा था, उसे भूख लग रही थी इसलिए. The mother was very near to him with the fish in her beak. उसकी मदर उसके पास बहुत पास जा रही थी, फिश का टुकड़ा हुआ मुंह में लिए हुए. Maddened by hunger he dived at the fish. अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने फिश को पकड़ने के लिए डाइव लगाई. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए, डाइव करते हुए अंदर की तरफ बाहर की तरफ वो स्पेस में घूमने लगा. अ टेरर सीज्ड हिम. उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. हिज हार्ट स्टूड स्टिल. उसका हृदय हार्ट ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थम गया हो. हिज मदर swooped past him. उसकी मदर उसके आसपास अभी भी घूम रही थी. ही आंसर्ड हर विथ अनादर स्क्रीम. उसने उसे जवाब दिया जोर से और फिर से चिल्लाते हुए. ही सॉ हिज 2 brothers and sister flying around him. तभी उसने देखा कि उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर भी उसके आसपास हवा में फ्लाई कर रहे हैं.
उड़ रहे हैं। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह भी उनके साथ उड़ रहा था। Seagull's first flight. The seagull completely forgot that he was not able to fly. सीगुल पूरी तरीके से भूल गया था कि वह उड़ना नहीं जानता। He let himself free to dive, soar and curve at will. वो अपने आप को उसने छलांग लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए और अपनी बॉडी को कर्व करने के लिए पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया था। He was shrieking shrilly. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था कि वह उड़ना सीख गया है। He saw a green sea beneath him. उसने अपने नीचे की ओर देखा उड़ते हुए तो उसे ग्रीन सी, हरा समुद्र चारों तरफ दिखाई दिया। His parents, his brothers and sister were beckoning to him, calling shrilly. उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वह कितना अच्छे से उड़ रहा है और वो लोग भी उसकी चीख की आवाज़ का रिप्लाई कर रहे थे। He was tired and weak with hunger. अब चिल्लाकर उड़कर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, कमज़ोर हो चुका था और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। His feet sank into the green sea and his belly touched it. अब वो नीचे की ओर आया, ग्रीन सी में वो डूब रहा था और ग्रीन सी की सरफेस पर उसकी बैली टच कर रही थी, उसका पेट उस ग्रीन सी की सतह को टच कर रहा था। He sank no further. इससे ज़्यादा वो नहीं डूबा, मतलब वो अब सी की सरफेस पर भी आसानी से मूव कर पा रहा था। His family were praising him and their beak were offering him scraps of fish. उसकी फैमिली, उसका पूरा परिवार उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था और उसे बहुत सारी फ़िश को ऑफ़र दे रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी और वो उसे अब फ़िश देने को तैयार थे। He had made his first flight. इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी।